ہم نے اپنے اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں کہانی کو وہاں پہ چھوڑا تھا کہ وسیم کو 24 آورز سیل میں رکھنے کے بعد پولیس نے بیل پہ رہا کر دیا اور ایک اسٹرانگ وارننگ کے ساتھ کہ خبردار اگر تم نے اپنی بیوی کو تلاش کرنے کی کوشش کی یا اس کو کسی طرح سے کانٹیکٹ کیا تو تمہارا بیل کینسل ہو جائے گا اور تمہیں دوبارہ اریسٹ کر لیا جائے گا اور پھر بیل ہوگا بھی نہیں۔ یہ وارننگ دے کر اسے بیل پہ چھوڑ دیا۔ اب اتنا اسٹرانگ وارننگ، اتنا پولیس کا ہارش ہو جانا کسی شخص کے ساتھ تبھی کیونکہ کہ جرم کا کوئی ثبوت ہو، یعنی پروف آف کرائم ہو، اب پولیس کو یقین ہو کہ یہ شخص کرائم کر چکا ہے، ابھی تک کوئی ثبوت نہیں، کچھ ملا نہیں ہے، ایک بے گناہ شخص کو اریسٹ کیا گیا ہے، اسے 24 گھنٹے سیل میں رکھا گیا ہے، اب یہ وارننگ بھی اسے دیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے ایک بے گناہ شخص کو یہ لوگ ٹریٹ کر رہے تھے جس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے ایک ایسے عورت پہ بھروسہ کر کے اس کے ساتھ شادی کر کے اس ملک میں لے آیا تھا کہ وہ ایک جھوٹی اور دھوکے باز ایک فراڈ تھی۔ میں جانتا ہوں کہ باہر سے آنے والی بہت سی عورتیں برطانیہ پہنچ کر اپنے شوہروں کو دھوکہ دیتی ہیں۔ میں تم پر کیسے بھروسہ کروں کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دو گی؟ اور ایک اچھی بیوی بنوں گی اور تمہارا خیال رکھوں گی اگر تم مجھ سے شادی کرو گے۔ اب اس کے فراڈز کا کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہا، اس نے جو ایلیگیشنز لگائے تھے اس کا کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہا۔ اس کو لا کر اس طرح انٹرویو روم میں بٹھا کر اس سے یہ سوالات نہیں کیے جا رہے ہیں، لیکن اس سے کیے جا رہے ہیں اور وارننگ بھی دیا جا رہا ہے۔ الغرض یہ جیسا کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں ذکر کیا تھا، بڑی مشکل سے گھر پہنچ گیا اور اس کی بیوی آفی کو پولیس نے بلیک سسٹرز آرگنائزیشن کے حوالے کر دیا کہ وہ ابھی اس کو سپورٹ کرے، اس کو اکوموڈیٹ کرے۔ اب جب یہ وہاں پہنچ گئی، ان کے حوالے ہو گئی، پولیس کا کام ابھی یہاں تک اس کے بارے میں تھوڑا سا ختم ہو گیا۔ اب وہ حوالے ہو گئی، یہاں یہ بیل پہ رہا ہو گیا۔ اب جب بلیک سسٹرز کو یہ معلوم ہوا کہ اس کا شوہر تو بیل پہ چھوٹ گیا ہے، اب وہ ایلیگیشنز جو اس کی بیوی نے وسیم پر لگائے تھے اس کی کاپی تو بلیک سسٹر کے پاس ڈیفینیٹلی تھی، پولیس نے ضرور بھیجی ہوگی، ان کو پتہ ہوگا کہ اس نے کس قسم کے ایلیگیشنز لگائے تھے۔ تو جب انہوں نے ایلیگیشنز کو دیکھا یہ تو کافی سیریس ہے، اس پر تو اس کو چارج ہونا چاہیے تھا، وسیم کو سیدھا جیل جانا چاہیے تھا، یہ کس طرح بیل پہ رہا ہو گیا؟ پولیس نے کیسا اس کو بیل پہ چھوڑ دیا؟ ابھی تو یہ باہر پھر رہا ہے۔ تو انہوں نے فوراً آفی سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ہسبینڈ کو بیل پہ رہا کر دیا گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا ہاں، وہ ابھی باہر گھوم رہا ہے، اس کو رہا کر دیا گیا ہے۔ تو آفی جبکہ ان چیزوں کو زیادہ نہیں سمجھتی تھی کیونکہ اس ملک میں نہیں آئی ہوئی تھی، تو اس نے پوچھا کہ اچھا اگر وہ باہر بھی پھر رہا ہے تو اس میں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اس میں بہت بڑی بات ہے، یہ تمہارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ کہ وہ اس لیے کہ وہ جب بھی تم اس کو کہیں باہر نظر آؤ گی وہ تو ضرور تم سے بدلہ لے گا، تمہیں چھوڑے گا نہیں،
تو اس نے پھر پوچھا کس چیز کا بدلہ وہ لے گا. کہتے کیوں, تم نے جو اتنے ایلیگیشنز اس کے اگینسٹ لگائے ہوئے, اس کو اریسٹ کروایا, تو کیا وہ بدلہ نہیں لے گا؟ اتنے ایلیگیشن اس پر تم نے لگائے اور اس کو اریسٹ کروایا, وہ بدلہ نہیں لے گا؟ وہ تم جب جہاں بھی اس کو نظر آؤ گی وہ چھوڑے گا نہیں. اب آفی گھبرا گئی. اچھا, اس طرح تو میں نے سوچا نہیں تھا. کہ ہاں ہم بتا رہے ہیں کیونکہ ہمارا یہ ایکسپیرینس ہے, ہم دیکھتے ہیں. اچھا تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب تم دوبارہ جاؤ, ابھی واپس پولیس اسٹیشن جاؤ, اس کے اوپر اور ایلیگیشنز لگاؤ, اس سے بھی زیادہ سیریس, تاکہ دوبارہ اس کو پولیس اریسٹ کر کے اور پھر اس دفعہ بیل بھی نہ ہو, وہ سیدھا چارج ہو جائے. تو تبھی تمہاری جان چھوٹے گی, تبھی تم سکون سے رہ سکو گی. تو آفی نے کہا کہ دیکھو, مجھے جتنے معلوم تھے ایلیگیشنز, اور یا لوگوں نے مجھے بتائے تھے کہ کس قسم کے ایلیگیشن میں لگاؤں تو وہ اریسٹ ہو سکتا ہے, تو جو مجھے آتا تھا یا لوگوں نے بتایا تھا وہ سارا میں نے پولیس کو اسی روز بتا دیا. اس سے زیادہ تو میرے ذہن میں آتا بھی نہیں ہے, اور نہ مجھے انگلش آتی ہے کہ میں جا کر ابھی دوبارہ ان سے جو ہے بات کر سکوں. تو وہ تو اس روز وہ کسی نے ہیلپ کیا تھا میرا ٹیلی فون کے اوپر, جو ایلیگیشنز اس روز کسی نے لگایا وہ بھی میں نے خود سے نہیں بولا, وہ تو کسی اور نے فون کر کے میرے لیے پولیس کو, وہ ادھر سے اور عورت بتا رہی تھی. پولیس نے تو میرے سے صرف کنفرم کیا کہ یہ جو فون کر رہی ہے, جو کچھ بتا رہی ہے تمہارے ہسبینڈ کے خلاف, یہ صحیح ہے. میں نے پولیس کو بولا کہ ہاں, مجھے وہ پتہ بھی نہیں ہے کہ اس نے کیا بولا تھا. تو اب میں کیا بولوں؟ کہتے ہیں اس کی فکر تم مت کرو, ہم ہے نا, ہم کس لیے, اس میں ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں. تم کو اور ایلیگیشنز لگانے ہوں گے, اس کو اندر کروانا ہوگا, تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم میں سے ایک تمہارے ساتھ ابھی پولیس اسٹیشن جائے گی, اور وہ جو کچھ بھی پولیس کو بتائے, اس کو پتہ ہے کہ اس نے کون سے ایلیگیشن لگانے. تو پھر اگر پولیس تم سے پوچھے, جیسے کہ تم نے اس روز گھر میں کہا تھا کہ ہاں ایسے ہاں بولو, بس اتنی سی بات ہے, ویسے تو پولیس تم سے پوچھے گا نہیں. وہ جو یہ بتائے گی وہ رپورٹ لکھے گا اور تمہارے ہسبینڈ کو دوبارہ اریسٹ کریں گے وہ. لیکن پھر بھی پوچھا, تم خالی بولو ہاں, تو یہ تو کر سکتی ہو, اور ساتھ میں یہ جا رہی ہے. One of us will take you to the police station and you make another report to the police against your husband. کہا ٹھیک ہے, اگر مجھے اس طرح سے خطرہ ہے اور تم لوگ بتا رہے ہو کہ اگر میں باہر نکلوں تو اگر اس کو میں نظر آؤں تو وہ مجھے کچھ نقصان پہنچائے گا, تو ٹھیک ہے میں چلتی ہوں. تو آفی بھی تیار ہو گئی. اب وہ بلیک سسٹر میں سے ایک عورت نے آفی کو ساتھ لے کر پولیس اسٹیشن چل پڑے. اب پولیس اسٹیشن پہنچنے سے پہلے راستے میں وہ بلیک سسٹر اس کو بتا رہی ہے آفی کو کہ دیکھو, پولیس اسٹیشن پہنچنے سے پہلے جو کچھ ایلیگیشنز میں جا کر تمہارے ہسبینڈ پہ لگانے والی ہوں, تمہیں بھی وہ پتہ ہونا چاہیے. تو میں ابھی تمہیں بتا دیتی ہوں کہ میں کیا وہاں ایلیگیشن لگاؤں گی. تو بلیک سسٹر نے اس کو آفی کو راستے میں بتا دیا. آفی نے بھی کہا ٹھیک ہے, تم جو بولو میں ہاں کروں گی. اب یہ پولیس اسٹیشن پہنچ گئے تو اس پر ایک اور سنگین قسم کا بڑا خطرناک تھا, ایک لیکن ایٹم بم کی طرح تھا, وہ لگا لیا. کیونکہ بلیک سسٹر کو پتا تھا کہ اس پہ یہ ڈیفینیٹلی چارج ہوگا, ایک ہی کافی ہے, خطرناک ہونا چاہیے. تو پولیس نے بھی ایک دم لکھ لیا اور آفی بھی ساتھ ہے. پولیس نے آفی سے پوچھا تک نہیں کہ یہ ایلیگیشن, ابھی یہ 2 ہفتے ہو گئے تھے جو یہ دوبارہ ابھی جو پولیس اسٹیشن گئی, پہلے اریسٹ سے یہ 2 ہفتے کی بات ہے.
تو पुलिस ने ये भी नहीं पूछा कि 2 हफ्ते पहले तुमने पुलिस को कॉल किया था, तुमने एक लिस्ट एलिगेशन जो है अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ पुलिस को बताया, फिर ये वाला क्यों नहीं बताया? पुलिस तो डेफिनेटली पूछती आखिर में कि जो कुछ है सब बताओ। तो उन्होंने तो पूछा होगा, तो तुमने फिर ये वाला क्यों नहीं बताया? सबसे ज़्यादा सीरियस तो ये है। नहीं, पुलिस ने ये नहीं पूछा। क्या ठीक है, उसने भी रिपोर्ट तैयार कर लिया और जैसे वो रिपोर्ट बनाया उसी वक्त पुलिस ने वसीम को ईमेल कर दिया कि अभी पुलिस स्टेशन पहुंच जाओ। वसीम ने जब देखा उसके फ़ोन पर ईमेल आ गया है और पुलिस कह रहे हैं कि अभी पुलिस स्टेशन पहुंच जाओ, आखिर ऐसी क्या बात है? उन्होंने तो मुझे बेल पे छोड़ दिया और जो वार्निंग दिया था उसके मुताबिक तो मैं उस पर तो मैं अमल कर रहा हूँ, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं बल्कि घर से निकला ही नहीं हूँ। तो फिर ये मुझे किस लिए बुला रहे हैं? बहरहाल जाना था, ना जाते तो वो आकर अरेस्ट कर लेते। तो इसने जाना था। वो जैसे ये पुलिस स्टेशन पहुंच गया कि हाँ आपने मुझे बुलाया है, मैं आ गया हूँ, तो उन्होंने वही पुलिस स्टेशन के अंदर ही उसको दोबारा अरेस्ट कर लिया बगैर कुछ बताए। घर में तो बता दिया कि हम तुम्हें इसलिए अरेस्ट कर रहे हैं, यानी हम तुम्हें इस जुर्म के इल्ज़ाम में अरेस्ट कर रहे हैं, यानी हैंडकफ डालने से पहले पुलिस बता देती है क्योंकि ये लॉ है, ताकि जिसको ये अरेस्ट कर रहे हैं चाहे वो मुजरिम है या नहीं है, उसने वो जुर्म किया है या नहीं है, उस पर अगर ये इल्ज़ाम है तो वो पुलिस पहले बता देती है। घर में तो बता दिया लेकिन पुलिस स्टेशन में कुछ भी नहीं बताया और उसको वही अरेस्ट करके सेल में बंद कर दिया। अब वसीम हैरान, या अल्लाह अब क्या हो गया? वो जो एलिगेशन उसने लगाए थे उसने तो लगा लिए, उस पर जो इन्होंने अरेस्ट करना था वो तो कर दिया, अब वो केस तो चल रहा है, उसके बाद तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वो ना मेरे साथ वो है कि वो दोबारा कोई एलिगेशन मुझ पर लगा सके। अब तो वो भी आफी मेरे साथ तो है ही नहीं, मुझे तो पता भी नहीं वो कहाँ है। तो ये फिर किस लिए मुझे अरेस्ट बुलाया और अरेस्ट भी किया और अंदर भी किया और बताया भी कुछ नहीं, कुछ इसको पता नहीं। यानी इतना जुल्म ये कर रहे थे बेगुनाह शख्स के ऊपर बगैर किसी प्रूफ के। अब वसीम बेचारा बैठा हुआ है सेल में, उसको कुछ पता नहीं है कब तक बैठा रहेगा, कब उसको बाहर निकालेंगे, कब बताएंगे, बैठा है। तो आखिर वो वक्त आने पर फिर इसको दोबारा निकाला, फिर इसको इंटरव्यू रूम में दोबारा ले गए। अब वहाँ इंटरव्यू रूम में इसको बता रहे, पुलिस बता रहा है तो कि तुम्हारी बीवी पुलिस स्टेशन आई थी, उसने तुम पर एक और एलिगेशन लगाया हुआ है जो कि ये वाला है। तो वसीम ने पूछा बताओ कौन सा वाला है? वो एलिगेशन था रेप का, कि इसने मुझे रेप किया है और एक बार भी नहीं। ये जिस दिन से मुझे इस मुल्क में ले आया है उसी दिन से उस दिन तक जब कि मुझे मौका मिला और मैंने पुलिस को बुलाया, यानी ये 6 हफ्ते का वक्त, ये पूरा 6 हफ्ते मुझे हर रोज़ 2 दफ़ा रेप करता था, हर रोज़ 2 दफ़ा ये रेप करता था। और जब मैं इसकी मिन्नतें करती थी, इसके सामने रोती थी कि मेरे साथ इतना जुल्म मत करो, तो फिर ये मुझे मारता पीटता भी था। मेरा मोबाइल तो मेरे पास था ही नहीं कि मैं पुलिस को कॉल करती। तो 6 हफ्ते हर रोज़ 2 दफ़ा ये मुझे इस तरह रेप करता था। तो पुलिस ने ये नहीं पूछा, ये तो एक रेप भी नहीं था, 6 हफ्ते हर रोज़ 2 दफ़ा। तो तुम्हें ये सब याद नहीं था उस रोज़? तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि ये भी झूठ है और पहले वाले भी झूठ है। ये तो कोई शख्स भी यानी अपना दिमाग लगा कर, पुलिस वाला वो ना भी हो, कोई भी शख्स किसी के सामने ये बात रखी जाए, किसी को इस तरह बता दिया जाए तो एकदम वो शौक हो जाएगा, वो कहेगा यार ये कैसे हो सकता है? तो तुम इतना बड़ा हादसा 2 दफ़ा अब तुम बता रही हो, रोज़ाना तुम्हें रेप करता था, पूरा 6 हफ्ते करता रहा और 6 हफ्ते से भी कुछ ज़्यादा वक्त हो गया था, तकरीबन 7 हफ्ते के लगभग हो गया था
तो ये 6-7 हफ्ते वो तुम्हें डेली करता था 2 दफ़ा ज़बरदस्ती, और ये सब तुम्हें उस रोज़ याद नहीं था। और वो तप्पड़ मारना, लात मारना, ये तुम्हें याद था और ये याद नहीं था। ये कैसे हो सकता है? ये तो कोई भी शख्स के सामने बात रखी जाए वो ये कह सकता है, ये सवाल बन सकता है, लेकिन पुलिस ने इसमें कोई बात नहीं की। वसीम को पकड़ के दोबारा अंदर कर दिया। तो खैर, अब वसीम को कहा कि इस एलिगेशन के बारे में क्या कहते हैं। तो वसीम ने कहा कि जब पहले वाला सब झूठ था, ये भी झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, सब झूठ, सारे इल्ज़ाम झूठ। मुझे हैरान है कि तुम लोग ये पहले मालूम क्यों नहीं, तुम लोग उससे पूछते क्यों नहीं हो, तुम इसका इन्वेस्टिगेशन पहले करते क्यों नहीं हो? मुझे सबसे पहले अरेस्ट करके अंदर कर देते हो, ये तो तुम लोग कर देते हो, और वो नहीं करते हो। उससे तो अभी तक एक सवाल भी तुम लोगों ने पूछा नहीं, वो खुद ही आकर रिपोर्ट करते हैं, तुम लोग तो उसको कांटेक्ट भी नहीं करते हो, उसे पूछते भी कुछ नहीं। तो अलगरस ये हो रहा था, ये जुल्म वसीम के साथ हो रहा था। ठीक है, इसकी बीवी कसूरवार थी, उसे ने ये सब कुछ शुरू किया था, वो ना करती तो पुलिस की इन्वॉल्व होती, लेकिन पुलिस भी यहाँ जो कुछ कर रहा था वो बिल्कुल गैर कानूनी कर रहा था, बिल्कुल जुल्म कर रहा था एक बेगुनाह शख्स के ऊपर। तो वसीम ने डिनाई किया, तो फिर उसको दोबारा वो पहले की तरह फिर वो इंटरव्यू रूम से 2 घंटे के लिए बंद करना, फिर वो CPS के पास जाना, फिर वापस, इस तरह वही प्रोसेस हुआ और उसको दोबारा बेल पे छोड़ दिया। अब जब लक्स सिस्टर्स को पता चला कि ये अरबाब नाकाम हो गया, इतना सख्त एलिगेशन, फिर भी वो बेल पे निकल आया। देखो, अगर ये बात सही होती, वो पुलिस ऐसे आदमी को छोड़ देते, वो तो एकदम उसको चार्ज करके जेल में पहुंचा देते। वो पुलिस क्यों बेल कर रहा था? पुलिस को पता है सब झूठ है, सब झूठ है, इसलिए तो बेल पे कर रहा था, इसलिए उसको बेल कर रहा था, पहली दफ़ा भी, दूसरी दफ़ा भी। ये इतना सख्त कोई जुर्म करे, किसी औरत को 6-7 हफ्ते वो ज़बरदस्ती उसके साथ करता रहे, मारता पीटता भी रहे, और उसको रेप भी करता रहे, और हर रोज़ 2 दफ़ा करता रहे, और पुलिस फिर भी उसको बेल पे छोड़ दे। पता है, उनको पता है ये झूठ बोल रही है, लेकिन सपोर्ट उसको मिल रहा है, इस वजह से मर जाए जहन्नम में, उसको जो कुछ भी होना है, वो जलील हो जाए, उसका जाब जाए, उसका बिजनेस ख़राब हो, उसको माली नुकसानात पहुंच जाए, वो स्ट्रेस और डिप्रेशन में चला जाए, जहन्नम में जाए, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है। मर्दों के लिए ये औरतें झूठ भी बोले, धोखा भी दे, सब कुछ करे, सपोर्ट तो इनके लिए है। ये हो रहा है, इसलिए तो उससे कोई सवाल करता ही नहीं, कोई क्वेश्चन कोई भी नहीं करता, जहाँ भी हो जाती, ना पुलिस ना दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, हर तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। फ़ोन उसके पास आ रहे कि और कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बता दो, पैसा चाहिए, चलो हम तुम्हारे अकाउंट में भेज रहे हैं, जो कुछ चाहिए हमें कॉन्टेक्ट करो, तुम विक्टिम हो, इसलिए तुम्हें सपोर्ट किया जा रहा है। ये हो रहा है। तो बहरहाल जब लक्स सिस्टर्स को पता चला कि ये दोबारा बेल पे छोड़ दिया गया है, अब उनके ऊपर आग लग गई। वो इसलिए नहीं कि उनको आफ़ी का फिक्र था कि ये आफ़ी बार अगर उसको नज़र आए तो उनकी बला से आफ़ी को कोई कुछ भी करे, उठा कर ले जाए, जो भी करे गायब करे, उनकी बला से। उनको तो ये फिक्र थी, तो ये उसका बार होने का मतलब ये है कि उसका जुर्म साबित नहीं हो रहा, तो ये केस ख़त्म हो सकता है एकदम। अब केस हाथ लगा हुआ है, इसको चलाना है, और जितना लंबा करना है उतना ही फंड्स आना है, उतना पैसा हमने क्लेम करना है, तो ये केस तो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा वाला केस हाथ लगा हुआ है और वो ख़त्म हो जाए ऐसे, इसलिए उनको किसी का गम नहीं है, वो अपने पैसों का गम है। केस हाथ लग जाए, अब उसको जितना ड्रैग करो, जितना लंबा करो, करते जाओ, साल लगे, 2 लगे, जितने भी लगे,
वो जितना लगेगा उतना वो पैसा क्लेम करते हैं जब तक केस चलता है। फंड तो उनको इसी पे मिलता है, केस नहीं होगा तो क्या क्या करेंगे वो। ये इसलिए वो खुद जाकर उसने झूठे इल्ज़ामात वसीम पे लगाए, पुलिस स्टेशन जाकर खुद ही, ब्लैक सिस्टर ने खुद ही। ये होता है। तो बहरहाल अब उनके अंदर आग लग गई कि ये क्या हो गया। तो उन्होंने क्या किया, फ़ौरन पहले तो उसको लोकली यहाँ अकोमोडेशन दिया था इसी एरिया में, जो कि वसीम के घर से ज़्यादा दूर नहीं था, क्योंकि ब्लैक सिस्टर ऑफिस भी वसीम के घर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहीं पे रखा था और एकदम उसको उठाकर वो दूर ले जाकर 170 माइल आगे किसी और टाउन में, वहाँ एक शेल्टर है जो वो भी इन्हीं का है, जो ये लोगों को अच्छी तरह से छुपाना चाहते हैं, तो फिर वहाँ ले जाकर रखते हैं। और वो है साउथ वेल्स में, न्यूपोर्ट एक इलाका है उसमें है। अब ये कॉन्फिडेंशियल है, लोगों का पता नहीं है, लोगों को पता नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो कहाँ है। वहाँ पे रख दिया ताकि ये आफी अभी इसको नहीं मिलेगी। जब नहीं मिलेगी, वो इसलिए नहीं, उनको पता था कि आफी इसको अगर रोड पे मिल भी जाए, वो कोई ऐसा मर्द होगा जो बहुत पागल होगा या बहुत उसका वो शराब पीता होगा या कुछ इस तरह करता होगा, वो फिर अपनी बीवी को या जो भी उसके साथ करे उसको कहीं नज़र आए वो औरत उसको वो कोई नुकसान पहुंचाए। हर एक मर्द नहीं करता, हर एक नहीं करता, बहुत सारे नहीं करते। तो उनको पता है कि इसको अगर आफी नज़र भी आए, ये ऐसा नहीं कुछ करने वाला उसके साथ। इनको डर ये था कि ये और इस और आफी की मुलाकात अगर हो गई तो हो सकता है इनकी बात बन जाए, ये दोबारा आपस में रहने लगे और ये केस ख़त्म। तो पुलिस भी फिर मजबूर है फाइल क्लोज कर दे, फिर तो ना कोर्ट में जाएगा, ना फिर पुलिस का और एक्शन होगा, ना हमारा धंधा चलेगा। तो ये इस और आफी को दूर रखो ताकि मिल न सके। जब तक ये मिलेंगे नहीं तब तक ये इनका धंधा चलता रहेगा। इसलिए उसको साउथ वेल्स भेज दिया ताकि अब इसके लिए वसीम के लिए नामुमकिन है। वसीम ज़्यादा से ज़्यादा इसको अगर ढूंढता भी रहेगा तो लंदन में कहीं देखता होगा, उसको वही ढूंढता होगा। उसको क्या ये पता है कि ये साउथ वेल्स में होगी और कहीं भी होगी बाहर, तो इसलिए वहाँ इसको रख दिया। तो अब इस कहानी में ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं, बड़ी दिलचस्प, और बिल्कुल ये जेन्युइन स्टोरी है, ये ट्रू स्टोरी है, हकीकी कहानी है, ये किसी फिल्म की स्टोरी नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइन स्टोरी है, आंखों देखा हाल है जिस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आगे इसमें बहुत सारे दिलचस्प वाक़यात आएंगे और बड़ा सबक आमोज़ है, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ये मेरे वीडियोस को देखते रहेगा तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। आपको ये मालूम होगा, खुदा ना से कभी किसी का इसी सिलसिले में पुलिस से वास्ता पड़े तो उसको पहले से समझो कि पुलिस ने इस पर किस तरह एक्शन लेना है, और ये ऐसी ब्लैक सिस्टर के पास जाए तो फिर वो ब्लैक सिस्टर क्या करती हैं, उनके झूठ और धोखे क्या होते हैं, तो ये सब पता होना चाहिए। सबको मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह बेनकाब करूँगा कि क्या क्या करते हैं। तो और ये सिर्फ पुलिस और ब्लैक सिस्टर नहीं है, इसके बाद और भी इसमें ऑर्गेनाइजेशंस है और भी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होने वाले हैं, और भी होगा। तो वो फिर आगे क्या करते हैं, इसको किस तरह डील करते हैं, तो ये सब इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू रखूँगा जब तक ये पूरी कहानी ख़त्म होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप अपने कमेंट्स में ये बताएं कि जब आफ़ी ने कुरान पे हाथ रख के कसम खाया कि मैं अच्छी बीवी बनकर रहूँगी और तुम्हारा ख्याल रखूँगी, तो फिर वसीम को उसके साथ शादी करनी चाहिए थी, उसके कसम पे भरोसा करना चाहिए था, या कि फिर भी नहीं करना चाहिए था। जब पुलिस
वसीम को अरेस्ट कर रहा था और वसीम ने ये रिक्वेस्ट की पुलिस से कि मेरे पास सारे एविडेंस है, मेरी बीवी ने जो कुछ बताया जिस पे आप अरेस्ट कर रहे हैं वो झूठ है, ये देख ले, प्रूफ मेरे पास है। तो क्या पुलिस को प्रूफ देखना चाहिए था या कि फिर भी अरेस्ट कर देना चाहिए था बगैर प्रूफ देखे? जब वसीम बेल पे रहा हुआ तो क्या ब्लैक सिस्टर को ये चाहिए था कि वो जाकर खुद ही उस पर दूसरा एलिगेशन लगाए या नहीं करना चाहिए था? तो आप ज़रूर इसको कमेंट में लिख दें कि आपकी राय क्या है इस पर। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम उस्मान ख़ान है और मैं अपने YouTube चैनल क्यूसिस हिस्टोरिकल स्टोरीज़ पर सच्ची और दिलचस्प तारीख़ी कहानियाँ पेश करता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें ज़रूर देखें, लाइक करें और हमारे चैनल क्यूसिस हिस्टोरिकल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।